हेलो मैम, आपने 9422 वाली आईडी ज्वाइन की थी, आप 98 वाली ही ज्वाइन कीजिए। Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay. Please मुझे एक जन बताइए कि आप कौन से सेम के स्टूडेंट हो? Ma'am, Sam 6. 6th सेम? Okay. So it's my lecture. Actually मैं गलत लेक्चर में चली गई थी। हाँ, so हमारा कल टॉपिक हमने देखा था, हमने सिलेबस रीड किया था, राइट? तो आपको सिलेबस समझ में आ गया है? ठीक है। आपने सिलेबस देख लिया है? Yes, ma'am. ठीक। अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इट्स कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, राइट? मैंने आपसे कहा था कल कि मुझे एक लाइन आप कल फिटनेस के बारे में बताओगे, तो एवरीबॉडी इज प्रिपेयरिंग दैट। एक एक करके मुझे बता सकते हैं या फिर मैं एक एक करके नाम लूं तो आप मुझे बताओगे? या फिर नहीं किया है तो भी फ्रैंकली बता दो, देयर इज नो इशू एट ऑल। मैथिली, आर यू प्रिपेयरिंग एनीथिंग? Yes, ma'am. प्लीज से। व्हाट इज फिजिकल फिटनेस? एनीथिंग, एनी वन लाइन। आपको क्या लगता है क्या होता है फिटनेस, फिजिकल फिटनेस? व्हाट इज इट? व्हाट्स मीन ऑफ फिजिकल फिटनेस? लाइक आपको पता तो है फिजिकल फिटनेस क्या है, आप नो वेरी वेल, बट एक लाइन उसके बारे में।
Ma'am, ma'am, actually, excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, your voice was not clear. ओके, अभी आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो आप बताइए व्हाट इज फिजिकल फिटनेस? सिंगल लाइन. Physical fitness is a state of health and well-being. Right. Very nice. Next. Bharti. Bharti, are you there? Ma'am, may I? Yes. The physical fitness can be defined as the state of the body when the body is disease free and also mentally and socially fit. Mentally and physically fit. Yeah, yes, ma'am. Right. Everybody is very nice. Your name is Blizzy. Bless you. Okay. Chanchal. Yes, ma'am. What is physical fitness? Any one line, single line. क्या होता है physical fitness? Okay, Diksha. Diksha, are you there? Yes, ma'am. Condition is the healthy and fit, well-being. Condition of healthy and well-being. Okay. Aisha. Yes, ma'am. Please say what is physical fitness? Ma'am, physical fitness means like you are mentally fit and your body, like body functions are on a proper way. Right, right. Priyanka. Ma'am, physical fitness can be the ability of the body system to work together efficiently is known as a physical fitness. Okay. Nikita. Physical fitness is the ability to be physically active, to move Sorry, and I respond can't hear to the you, beta. environment. Please speak loudly. Hello, ma'am. Ma'am, आ रही आवाज? हाँ हाँ बोलो. Physical fitness is the ability to be physically active, to move and respond to the environment. Is known as physical fitness. Okay, Sakshi. Sakshi, are you there? Okay, Sapna. Present, ma'am. Okay, please tell me about the physical fitness. What is physical fitness? Speak up anything, any one line. Like, what is physical fitness? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए physical fitness? No, okay, Tamanna. Yes, ma'am. What is physical fitness? Ma'am, physical fitness is defined as a state of body where we can actively perform daily activities. Right, right. So बहुत सारा हो गया. Now we come on the point कि भाई what is physical fitness? तो मैंने एक PPT मैं आपसे share करती हूँ. You just read it और फिर हम उसे explain करेंगे. Okay? मुझे बताइए. हाँ नहीं ठीक है. आपको notes कैसे provide किए जाते हैं? Like आपने जैसे मुझे कल बताया था कि आपको PDF या फिर आपको मेल किया जाता है कि जस्ट कॉलेज के ग्रुप में आपको मैं सेंड कर दूं तो आपको पता चल जाएगा, आप उसे प्रिंट कर लोगे या राइट कर लोगे. Anybody? तमन्ना. मैम, College group. कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर देते हैं ना. तो Yes, ma'am.
वर्ड में अगर मैं दूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप कॉपी कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं एक पीपीटी आपसे शेयर करती हूँ, वेट फॉर दैट। ओके, दिख रहा है स्क्रीन? Yes, ma'am. सो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, दैट इज फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के बारे में अभी आपने मुझे बताया, फिजिकल फिटनेस इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। फिजिकल फिटनेस means the proper functioning of body, proper functioning of physical and mental health. Okay, all things are right, but हमको इसे प्रॉपर फ्रेमिंग देना है, प्रॉपर सेंटेंस में हमें इसे लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको वैसे ही राइट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर। After the work is over, he still has sufficient capacity to do more work without any exertion. Right? हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, राइट? तो हम कब करना, कुछ लोग होते हैं जो जस्ट फॉर फन करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं अबाउट देयर हेल्थ, इसलिए वो करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको मजबूरी में करना पड़ता है, राइट? तो फिजिकल एक्टिविटी जब हम जॉय एंड प्लेजर के साथ करते हैं तो इट वर्क्स मोर इफिशिएंट। अगर हम उसे बस करना है, टायर्डनेस के साथ कर रहे हैं, तो हाँ इट वर्क्स, बट इट डजंट वर्क लाइक जब आप उसे अच्छे से परफॉर्म करते हो। और क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हो, कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज आपने कर लिया और आप थक गए हो और एक्सरसाइज करने के बाद आप सो गए हो। उसके बाद भी अगर आपको कैपेसिटी रहनी चाहिए बाकी सारे वर्क करने की। आपने बहुत सारे लोग देखा होगा जो हेवी वर्कआउट करते हैं और जाके बस सो जाना है, क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो दूसरा काम कर सके। तो दिस इज नॉट अ फिजिकल फिटनेस, राइट? आपको क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो उतना ही करो जितना आपके लिए कैपेबल है। इतना मत करो कि आपकी बॉडी के लिए वो फुल लोडेड हो जाए और आपकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्स भी ना कर पाए। तो ऐसी एक्सरसाइज करो जिसमें आपको प्लेजर एंड जॉय मिलता है। ओके, इतना ही करो जितना आपके लिए, आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट हो। और आफ्टर दिस फिजिकल एक्सरसाइज यू कैन एबल टू डू योर अदर वर्क आल्सो, राइट? तो फिजिकल फिटनेस इज रिलेटेड टू वर्क और टास्क, कि भाई हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर करने के बाद हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, ये हमारे बॉडी के लिए प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है, फिजिकल मेंटल हेल्थ को डेवलप कर रहा है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है अबाउट हेल्थ, अबाउट अवर बॉडी, ये सारी चीजें वो फिनिश कर रहा है या फिर उसे रिकवर कर रहा है। और तभी हम बोल सकते हैं कि हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिटनेस के लिए जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट्स वर्क प्रॉपरली। नहीं तो कोई मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करें और जिससे हमें प्रॉपरली बेनिफिट भी ना मिले। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस आपको समझ में आ गया है, ठीक है? फिटनेस मीनिंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल फिटनेस इज द कैपेसिटी टू डू वर्क इफेक्टिवली विद जॉय एंड प्लेजर। आफ्टर द वर्क इज ओवर, he still has sufficient capacity to do more work without any exertion. Okay. Now the concept of physical fitness. Why physical fitness is important? So when we are exercising, move and keeping our body, क्यों हम एक्सरसाइज करते हैं? जैसे कि अभी आपने मुझे बताया, हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? हमारी फिजिकल बॉडी को फिट रखने के लिए, हमारी बॉडी के फंक्शन को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, या वो स्मूथली वर्किंग में रहे, इसलिए हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को स्टेबल रखने के लिए भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो
हम जब एक्सरसाइज करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं हम फिजिकल एक्सरसाइज? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो काफी फ्लेक्सिबल है, वो टर्न होती है, हम जंप कर सकते हैं, हम क्लाइंब कर सकते हैं, हम हमारी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, मोर टीडियस वर्क भी हम हमारी बॉडी के साथ कर सकते हैं। जब पॉसिबल हो तभी कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है तो नहीं कर सकते हैं। बट हम सभी को ये गिफ्ट है गॉड से कि हम हमारी बॉडी को मूव, स्ट्रेच, बेंड, हर जंप, हर कुछ कर सकते हैं। तो हमारा फिजिकल फिटनेस का फंडा यही है कि जब हम बॉडी को मूव कर सकते हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो हमें वो करना चाहिए, बिकॉज इट गुड और ये हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करता है और हमारा एनर्जी एंड स्टेमिना भी बढ़ाता है। ठीक है, आपको पता ही है एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है, बट हमारा एनर्जी एंड स्टेमिना भी बढ़ता है। अगर कोई पर्सन है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करता है, ठीक है, एंड अनदर पर्सन इज जो डेली एक्सरसाइज करता है फॉर 1 आवर, तो वो इज बेटर, मीन्स किसका स्टेमिना ज्यादा होगा, जो एक्सरसाइज नहीं करता है वो या फिर जो एक्सरसाइज करता है? ऑब्वियसली जो एक्सरसाइज करता है उसका स्टेमिना ज्यादा होगा, वो जो एक्सरसाइज नहीं करता है उससे 4-5 काम वो ज्यादा ही करेगा, उसे उतनी थकान नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाती है अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्रेस, अकॉर्डिंग टू अवर फिजिकल एक्सरसाइज। अगर हम एक मजदूर का एग्जांपल ले लें, ठीक है, मजदूर जितना काम करता है उतना हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने अपने बॉडी को उतना एक्सरसाइज नहीं किया है, मीन्स हमारे बॉडी की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रोज ये काम कर सके। लेकिन मजदूर का काम क्या होता है? वही होता है, तो उसकी बॉडी खुद को डेवलप कर लेती है वो काम करने के लिए, वो उतना काम करने के बाद भी अपना दूसरा वर्क इजीली कर लेता है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि तुम आपको 4-5 बोरे उठा लो और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे रख दो, आपके बाद में कुछ कैपेसिटी रहेगी कुछ करने की? रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, आप हो सकता है कि आप वो उठा भी ना पाओ, लेकिन वही काम अगर हम मजदूर को बोले जिसका रोज का काम है ये सब कुछ, वो इजीली कर पाएगा और उसके बाद वो अपने दूसरे काम भी करेगा। तो ये उसकी बॉडी की कैपेसिटी हो गई, उसने अपने बॉडी को इस तरह बिल्ड कर लिया है, अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि वो ये काम इजीली कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ये काम कर पा रहा है इसलिए वो फिट है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हो सकता है उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उसकी बॉडी ये सब कुछ करने का जो स्टेमिना है वो बना चुकी है, इसलिए वो कर रहा है, उसकी एनर्जी उतनी जनरेट हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स एक्सरसाइज। उसका वो भले ही वो एक्सरसाइज एज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज उसे नहीं ले रहा है, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ एक्सरसाइज, इसलिए वो ये सब कुछ कर पा रहा है और वो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने ये पहले कभी किया ही नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस में हम यही बोल सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस रेफर्स टू मैक्सिमम फंक्शन कैपेसिटी ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, वी आर एक्सरसाइजिंग वेन ever we move and keeping our body tuned and in good running order। मजदूर का तो चलो ठीक है, उसकी मजबूरी है इसलिए वो कर रहा है, बट हमें अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है और ट्यून रखना है, तो इसलिए हमें जो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है या फिर फिजिकल वर्क जो परफॉर्म करना है, वो हम अगर करते हैं तो हम अपनी बॉडी को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं और बॉडी को ट्यून रख सकते हैं। और एक अच्छे से मीन्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग हमारे ऑर्गन्स का होना चाहिए, वो प्रॉपर फंक्शनिंग में हम अपनी बॉडी को चला सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। ठीक है, इम्पोर्टेंस हमको पता है, बहुत सारी चीजें हमें पता है कि भाई हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी इम्यूनिटी को ग्रो करेंगे, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी का वर्क प्रॉपर होगा, बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगी, हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टैमिना बढ़ेगा, राइट? तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, बट सम आर देयर लाइक हार्मोनियस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स हैं
दे बिकम बैलेंस। आजकल आप देख रहे हो हार्मोनल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, आपने भी सुना होगा इसके हार्मोन अनबैलेंसेस से ही सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ डिसीज, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रही है, तो दे से इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। व्हाई ऑल दिस हैपन? जस्ट बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। अगर प्रॉपर आप एक्सरसाइज करते हो, प्रॉपर वर्कआउट करते हो, प्रॉपर योगा करते हो, देन आपके जो हार्मोन्स है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। ठीक है, जितने अमाउंट में उन्हें होना चाहिए उतने अमाउंट में वो एक्सक्रीट होंगे, और जब हार्मोन बैलेंस रहेंगे तो हमारा बॉडी का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ऑब्वियसली हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो पर्सनालिटी है वो निखर कर आती है। ठीक है, आप ऐसा एक बंदे को देख लो जो कि एक्सरसाइज नहीं करता है एंड सी द अनदर मैन हु इज डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, दोनों में आपको डिफरेंस दिखता है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। किसी किसी का बॉडी होता है लाइक उससे नेचुरल बॉडी, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट इंटरनल अगर देखा जाए तो इट्स मैटर, और बॉडी लैंग्वेज पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। पर्सनालिटी इज डिफरेंट थिंग, बॉडी लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। सो डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ होना ही है। फिजिकली अगर आप फिट रहते हो तो आपकी जो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रहती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हो, डिसीज फ्री लाइफ जी सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ वीक एक्सरसाइज। बूस्ट एनर्जी, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा अगर आप एक्सरसाइज करते हो। जैसे कि मैंने कहा मजदूर जो काम डेली डेली करता है तो उसके लिए इसका एक हैबिट बन जाता है, और वो उतना काम करने के बाद भी ही हैव द कैपेसिटी टू डू अदर वर्क। बट अगर हम मजदूर के जितना काम करेंगे तो हमारी शायद हम कर भी ना पाए, और उसके बाद हमारा दूसरा काम करने का हालत भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी को बूस्ट करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, उसे मेंटेन करता है। स्टैमिना इंक्रीज होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ भी इंक्रीज होती है, जैसे कि हमने बोला कि फिजिकल फिटनेस मीन्स बैलेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ भी इससे इंक्रीज होती है। मेंटली फिट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस, आपको पता है नाउअडेज स्ट्रेस इज वेरी कॉमन, कि भाई छोटे छोटे बच्चों को आजकल स्ट्रेस हो रहा है हमने सुना है कि बच्चे भी आजकल स्ट्रेस में रहते हैं, और अभी जो टाइम है लाइक पेंडेमिक टाइम, इस टाइम में भी स्ट्रेस ऑफ लाइफ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जस्ट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन, कि भाई कोई घर पे है, किसी का जॉब चला गया है, किसी का फैमिली इज नॉट गुड, मीन्स इल है तो उसे भी बहुत स्ट्रेस है, बाहर का एटमॉस्फेयर इतना स्ट्रेसफुल है। तो एक्सरसाइज इन हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड इंक्रीज द मेंटल हेल्थ। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। इतना समझ में आ गया है? इसमें कुछ डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो ये बहुत इजी चीज है, लाइक ये आपको पता है, बस हमें इसे और डीपली पढ़ना है, तो क्या होगा कि हमें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है पेपर में। बाकी ये सब कुछ जितना भी मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी आप सुन रहे हो, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। So after the importance of physical fitness, type of exercise, there are so many type of exercise। आप नहीं तो अभी भी आपको पता होगा कि ये हम ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, हम वाली एक्सरसाइज करते हैं। so many advertisement you can see your surrounding कि भाई ये वाला एक्सरसाइज यहाँ पर चल रहा है, इसके क्लासेस होते हैं, कोई योगा क्लासेस ले रहा है, कोई एरोबिक, कोई जुम्बा, कोई जिम में क्लासेस ले रहा है, जिम में भी वर्कआउट के द्वारा सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कआउट। ठीक है, कार्डियो है, एरोबिक है, कोई क्या करता है ओनली रनिंग करता है, और जिम जाता है कोई आप में से? अच्छा, अभी तो जिम बंद ही है तो कोई जाएगा नहीं, बट आप में से कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं डेली?
नोबडी? नहीं भाई, आज से स्टार्ट कर देना एक्सरसाइज करना, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप खुद एक्सरसाइज करोगे तो आप लोगों को बता सकते हो कि इसके इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो एक्सरसाइज के अगर हम टाइप देखें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज: cardiovascular aerobic exercise, anaerobic exercise, joint flexibility and muscular endurance and strength exercise। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज में अगर हम देखा जाए तो कार्डियो आपने सुना होगा कि जिम में जाते हैं तो भाई हम कार्डियो करते हैं, राइट? तो कार्डियो मीन्स व्हाट? कार्डियो में ये होता है कि आप लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाते हो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए। मीन्स रिच ऑक्सीजन सप्लाई जब हमें चाहिए है, हम उसे बोलते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। अब एरोबिक एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज आती है जो कि हेल्प करती है हमारा ऑक्सीजन इम्प्रूव करने के लिए, ऑक्सीजन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई होने के लिए हमारे बॉडी में। तो वो एक्सरसाइज हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और कार्डियक सिस्टम को बूस्ट करता है, मेंटेन करता है, उसे हेल्दी बनाता है, उस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर और एरोबिक एक्सरसाइज। ओके, देन सेकंड इज एनारोबिक एक्सरसाइज, जहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो। ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी हो, हमें हमारी कैलोरीज बर्न करनी हो। ठीक है, जो हम वेट लॉस के लिए जो स्पेशली एक्सरसाइज करते हैं या मसल लॉस के लिए करते हैं, मिडल पोर्शन बढ़ गया है उसको हमें लॉस करना है, जो कैलोरी बर्न करने के लिए जो हम एक्सरसाइज करते हैं उन्हें बोला जाता है एनारोबिक एक्सरसाइज। उसके बाद है जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी। जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आपको पता है, जॉइंट को फ्री करने के लिए हमारे जितने भी जॉइंट्स है, अगर हम जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं करते हैं तो वो स्टिफ हो जाते हैं। एक बार जॉइंट स्टिफ हो गए तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आर्थराइटिस हो गया, जॉइंट पेन हो गया, सर्वाइकल हो गया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हम अपने जॉइंट को फ्लेक्सिबल नहीं बना रहे हैं। हमने कभी नेक ही नहीं घुमाया तो हमारा नेक स्टिफ हो जाएगा। स्टिफ हो गया तो वहाँ के जो मसल्स है वो प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक्सरसाइज का एक ही फंडा होता है, व्हेन यू मूव योर बॉडी देन द मसल्स ऑफ योर बॉडी गेट रिलैक्स्ड एंड वहाँ का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है ना? तो अगर बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ गया तो वो प्रॉपर ब्लड फ्लो करेगा। ब्लड फ्लो अगर प्रॉपर हो रहा है तो बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू ही पहुंचता है। तो अगर हम अपने बॉडी के जॉइंट्स को स्टिफ करके रखेंगे या फिर उनकी बिल्कुल हालचाल बंद कर देंगे, वो स्टिफ हो जाएंगे, तो ब्लड का जो फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ओके, मैं इसके ऊपर बाद में और बात करूंगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज मस्कुलर एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली बॉडी स्ट्रेंथ के लिए हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस अगर हमें चाहिए तो मसल्स एबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्म विदाउट फटीग, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम जो भी वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो हमें स्टैमिना मिलेगा उसे प्रॉपरली वर्क करने का विदाउट एनी फटीग। लाइक ऐसा नहीं होगा कि हम थोड़ा सा भी चल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा लाइक अभी के जो बच्चे हैं दे कैन वॉक इवन फॉर 1 किलोमीटर। लाइक आप भी अगर मोस्ट ऑफ द टाइम व्हीकल रेफर करते हो, मोपेड रेफर करते हो, तो अगर आपको कोई बोले कि 1 किलोमीटर आपको बस चलते जाना है तो यू कैन डू दैट। हाँ चलोगे बट एकदम एनर्जी के साथ नहीं चलोगे। वहां पर भी आप ये कहोगे कि नहीं बहुत थक गई हूँ, नहीं मुझे प्यास लगी है। बट द 1 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आपको इजीली वो चलते आना चाहिए। अगर आप डेली वॉकिंग करते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। अगर आप डेली वॉक नहीं करते हो तो ये आपको दिक्कत देगा कि आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहे हो। तो मस्कुलर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ यही है कि योर मसल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो आपका जो बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। और उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी लगेगी। मसल स्ट्रॉन्ग है तो फ्लेक्सिबल भी रहेंगे, और मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है वो फ्लेक्सिबल भी नहीं रहते हैं।
और चलो हम इतना तो बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेलनेस। पहले इतना बताओ मुझे, ये सब कुछ समझ में आ गया है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अभी मुझे बताइए कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी। स्लाइड चले गए हैं, शो हो रहे? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आपको अभी तक जितना बोला वो समझ में आ गया? मेरा अनम्यूट हो गया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, एक्चुअली मुझे स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा अंडर कंसेप्ट ऑफ फिजिकल फिटनेस, व्हाट इज फिजिकल फिटनेस, इट्स कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो ये आपको मैं नोट्स तो दे दूंगी, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद है इसके लिए कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो आप? नहीं, चलो ठीक है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि व्हाई एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट। तो हम एक जनरल बात करेंगे, जनरल थिंग है जो कि हमें पता रहना चाहिए कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो इंटरनली हमारे बॉडी में क्या होता है। ठीक है, तो देखो, एक्सरसाइज मीन्स व्हाट, कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स फ्री होते हैं तो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन है उस जगह पे वो प्रॉपर होने लगता है। अगर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है बॉडी का, तो जहां जहां पर ब्लड का नीड है वहां वहां पर ब्लड पहुंचता है, पहुंचा यानी ऑक्सीजन पहुंचा। जितने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए वो ब्लड के थ्रू ही हमारे सारे ऑर्गन में पहुंचते हैं। राइट, ये हमें पता है। अगर प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है तो हर ऑर्गन को प्रॉपर माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, तो वो हेल्दी रहेंगे। इसलिए हमें एक्सरसाइज करना इम्पोर्टेंट होता है। ये कंसेप्ट समझ में आया? ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है एक्सरसाइज का, कि हम अगर हमारे बॉडी का फ्लो, ब्लड फ्लो प्रॉपर है तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो अब ब्लड फ्लो प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना है? तो हर डिसीज के लिए, हर ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है, पर्टिकुलर मोमेंट्स होते हैं, वो मोमेंट्स हमें सीखने हैं। ठीक है, योगा में अगर आपने सुना होगा तो शरीर संचालन कहा जाता है, और हम एक्सरसाइज में अगर देखे जाए तो हम बोलते हैं वार्म अप करना है। ठीक है, शरीर संचालन करना एंड वार्म अप करना बोथ आर सेम थिंग। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे जो बॉडी है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट है या बॉडी जॉइंट्स है, उन जॉइंट को फ्री किया जाता है जो एक्सरसाइज करके, कुछ मूवमेंट्स करके या फिर कुछ मूव्स से। जैसे हम हाथों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, रिस्ट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, नेक को रोटेट करना, लेग रोटेट करना, हैंड रोटेट करना, थोड़ा सा स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करना, दिस ऑल कम्स अंडर शरीर संचालन एंड वार्म अप। तो इससे क्या होता है, हमारी जो नसें हैं वो खुल जाती है। खुल जाती है मीन्स व्हाट, वो प्रॉपरली वर्क करती है हमारा सर्कुलेशन करने के लिए। तो जब हमारे बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है तो हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो चली जाती है। अगर आपको ट्रेडिशनल थेरेपी के हिसाब से देखा जाए, ट्रेडिशनल योगा एंड बाकी जो चीजें हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए, आयुर्वेद के हिसाब से देखा जाए, तो
अगर किसी डिसीज को क्योर करना है तो आपकी बॉडी का जो प्रॉपर फ्लो है, ब्लड फ्लो, अगर वो प्रॉपर रहेगा तो भी आप डिसीज की लाइफ जी सकते हो। अगर आप कहीं पर भी आपकी नर्व ब्लॉक हो गई, सपोज स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड में सारी नर्व्स होती है, ये आपको पता है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से हमारे बॉडी के सारे नर्व्स जाते हैं, ये पता है आपको, ये वाला कंसेप्ट? नहीं पता है तो मैं और डीप में बताती हूँ उससे। है कोई? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना, इसलिए एटलीस्ट आप यस एंड नो करो तो मुझे समझ में आए कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद ही बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वहां से हमारी सारी नर्व्स जाती है, तो स्पेशली स्पाइनल कॉर्ड को ना बहुत एम्फेसिस किया जाता है एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज कि स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स को जितना हम फ्री करेंगे, जितना हम स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेच करेंगे, जितना हम स्पाइनल एक्सरसाइज करते हैं, उतना हमारी बॉडी फिट रहेगी। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी एक्सरसाइज जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है, जो हमारे स्पाइन को इरेक्ट करने में एंड स्पाइनल नर्व्स को फ्री करने में हेल्प करती है। तो दिस इज अ कंसेप्ट बिहाइंड एवरी एक्सरसाइज की प्रॉपर सर्कुलेशन, बॉडी सर्कुलेशन के लिए हमें ये करना चाहिए। बाकी भी चीजें हैं, लाइक हम फैट बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, हम बॉडी शेप करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मसल टोन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, दैट आर डिफरेंट थिंग, बट द मेन कंसेप्ट इज फ्लोइंग ऑफ ब्लड। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक भी है जो मैंने सोचा था कि मैं आज लूंगी, बट मेरा स्क्रीन पूरा डार्क हो गया, तो मे बी मैं वो स्लाइड शो कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो देखते हैं। नहीं हो रहा है अभी मेरे इसमें, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं हम, और कल फिर अपन अबाउट वेलनेस, वेलनेस पे बात करेंगे और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो आप भी थोड़ा पढ़ना अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इजी बट वेरी डीप एंड लॉन्ग थ्योरी है इसके ऊपर, व्हाई इट इज हैपन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रिलीव योर स्ट्रेस, राइट? अगर किसी को स्ट्रेस हो तो बताओ भाई, हम ट्राई करेंगे उसका स्ट्रेस कम करने का। एंड इतना ही है, इतना अगर हमारा कल हो गया है तो ऑलमोस्ट हमारा ये फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो गाइस बाय एंड टेक केयर, कल मिलते हैं। कल का टाइमिंग मुझे नहीं पता है, यही टाइमिंग है कि दूसरा टाइमिंग रहता है, तो वैसे आपको मैम पता चल यही जाएगा। टाइम है। यही टाइम है? यस मैम। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।